What are the hacks that you decided कि यार prelims को लेकर के मेरा ये mindset रहता है? अब प्रीलिम्स के लिए मेरा एक बहुत ही सिंपल फंडा है एंड दैट इज कि अपने आप को एकदम शांत रखना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि माय ऑप्शनल एंड इंटरव्यू मेड मी आईएएस। Through your journey, can you highlight that how much health is important in this journey? आई वुड हैव क्लियर दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट इफ माई हेल्थ वुड हैव बीन फाइन। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट से ये भी सीखा कि कहीं ना कहीं मेरी मेंटल हेल्थ भी गिव अप कर रही थी एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि मेरी फिजिकल हेल्थ सही नहीं थी। ऑप्शनल को सेंटर में लेकर के बाकी डिसीजंस को एवेल्युएट करना वुड बी द राइट वे टू थिंक। इसलिए क्योंकि ऑप्शनल हम चूज कर रहे हैं, ऑप्शनल वो सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ पे हम दूसरों से एक एज ले सके। एज अ कलेक्टर्स के पीछे की जो रोमांटिक लव स्टोरीज है वो प्रोबेबली लवासना ट्रिक्स की रही होती हैं। वही है कि जब तक रो करके वापस बैठना नहीं सीखोगे ये जर्नी मतलब पार नहीं होती है, तो ये बहुत जरूरी है सीखना। So hi everybody. Today we have with us Arpit Gupta. Arpit is IIT Roorkee graduate, and Arpit has cleared Civil Services 2021, and he's a IS 22 batch. And after completing his training from Labasna, he has joined as well his cadre, that is MP. And I'm happy to invite him on this podcast. So welcome Arpit. Happy to have you here, man. Thank you so much, sir. And it is my pleasure to be here and talking to you on this video call. It is actually an amazing experience after we met in the college. So obviously looking forward to having a great session. एब्सोल्युटली। अर्पित, बिल्कुल हम एकदम अपना कैंडिड डिस्कशन करेंगे बिकॉज मतलब हम काफी क्लोज रहे हैं, मिले भी हैं हम रुड़की टाइम में। तो मैं शुरुआत करता हूँ थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि वेयर यू कम फ्रॉम, अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड। एंड द रीजन बीइंग दैट आई यूजुअली आस्क दिस क्वेश्चन इज कि जो भी शुरू करता है ना वो कनेक्ट करता है, यार ये बंदा मेरी जैसी पर्सनैलिटी का है, या ये बंदा इस बैकग्राउंड से आता है एंड स्टिल ही थिंक्स दैट वे। सो दैट्स Right. द होल रीजन बिहाइंड आस्किंग दैट। सो प्लीज गो अहेड। So I basically come from a typical Eastern UP middle class family, and it has been a मतलब more or less rural setup. Because obviously I have been in town, but mostly ऐसा रहा है कि town में we have been following that rural वाला culture ही, because I have been attached to the roots of my village also. So that is sort of background that I'm coming from. My father has been a railway in railways, so basically, he retired as basically deputy in charge in the reservation department in Northeastern Railways. So earlier he joined as an engineer. So he worked in railways workshops and then moved to the reservation department at the fag end of his career. So and I myself basically coming from a family where people have been pursuing government jobs. So my grandfather has also been in a government job in railways itself. So that is sort of kind of background. I come from Gorakhpur, so Gorakhpur is also sort of not so urban area. So more or less it is you can say a rural come urban setting from where I belong. Absolutely. And I think after that you came to IIT Roorkee, right? Yes, So yes. for JEE preparation you went to Kota or like Gorakhpur से तैयारी की थी? No, I remained in Gorakhpur itself for JEE and did not come to Kota. Obviously, there were two big reasons. First, I wanted to do schooling properly in 11th, 12th, which was not possible in Kota as such. And secondly, I thought if I don't get a good rank and I would want to go to Kota only after 12th. So that did not happen, and I could enter IIT Roorkee. So in that way, I did not. Great, I prepared in Gorakhpur itself. great. So you entered IIT Roorkee in 2015, right? Yes. And 50 अगर कॉलेज में की बात मैं करूँ तो मतलब what is something that like that college has given to you? Like what's the interesting thing that you have discovered in college for you? Uh, College has given me lots of things. Like I did not know much more than engineering and doctor and all. Uh, it's a very big exposure for someone coming from Eastern UP, where there is dearth of opportunities and you don't know about things rather than pursuing. So in IIT Roorkee, I came to know there is some field called finance. There are banks where people work. There are normal banks and then there are investment banks also. There are lots of things that I came to know only when I entered IIT Roorkee for data science, etc. Everything I came to know about different career paths that I could take
although I could stick to the same career path that I had decided even before coming to IIT Roorkee. But basically, I was exposed to a lot of things. So I also tried my hands at financial markets, having pursued internship there, and also I worked for 3 months there. So that is something I believe IIT Roorkee gave, the kind of exposure it gave. It was something I did not even expect when I was entering into the college. And second thing that I believe IIT Roorkee gave was a passion for me to be fit, because I Hmm. when I entered IIT Roorkee, I was just 57 kgs, and I my height was 6 feet. So I used to be as thin, as a tar. So people used to say, "Oh my God, don't you get to eat something or like that?" But in IIT Roorkee only, I people motivated to go to gym. Ki gym chalte hain and will try to gain weight and all. And that is something that has remained with me. I started going to gym in second semester. That is the fourth semester, and that is something that has remained with me till now. I've never been not so fit. I've always been fit, Hmm. or and in that category till now. So that Got it. those are the two things I believe. तो बेसिकली कुल मिला के एक ऑल राउंडेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका मिल गया आईआईटी रुड़की में. For sure, for ग्रेट. sure. अर्पित, जैसे आपने मेंशन किया कि यू एक्सप्लोर्ड डिफरेंट एरियाज एंड आई थिंक इंटर्नशिप भी आपने करी. मेरा ये सवाल है कि यू कुड हैव डन वेल इन any field that you would have chosen, right? Because now I can guarantee it, because you have proven your that exception. Whatever field you would have chosen, you would have done exceptionally well. Right. But how did you came to this conclusion कि बॉस, क्योंकि आप उस मोड़ पे हो कि या तो जिंदगी इधर या जिंदगी उधर, तो आपने अपना फैसला कैसे इवेल्युएट किया कि मुझे इस तरफ की जर्नी चूज करनी है, मुझे शायद इनका फायदा हो, इस चीज का घाटा हो? आपने क्या प्रोज एंड कॉन्स काउंट किए, या फिर क्या ड्राइविंग फैक्टर था कि यार आई एम विलिंग टू बेट माई लाइफ ऑन दिस बिकॉज इट्स अनसर्टेन जर्नी? कॉर्पोरेट में फिर भी सर्टेन है, 6 महीने बाद पता है नौकरी लग जाएगी, कुछ तो मिल ही जाएगा. बट हियर द अनसर्टेनिटी इज लाइक एनीथिंग, है ना? स्टिल यू आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट अनसर्टेन जर्नी, want to take that leap. So what was your reasoning behind choosing this journey? क्या क्या दिमाग में था भाई? सर मैं अगर सही बताऊं तो द क्लैरिटी ऑफ थॉट दैट आई हैड अबाउट यूपीएससी सीएससी दैट नेवर ब्लर्ड. मतलब आई परस्यूड फाइनेंशियल मार्केट्स, देन टू आई हैड दिस आइडिया इन बैकग्राउंड इन माय माइंड कि नहीं ये करना है. और बेसिकली कॉन्स वर वेरी लेस, बिकॉज कहीं ना कहीं आई वाज being supported by my family in this, and I had that स्पार्क कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है, एंड दिस गिव्स मी द प्लेजर, द सेटिस्फैक्शन दैट आई वांट टू डू. तो दैट आई वुड वांट टू हैव इन लाइफ. तो अगर इवन इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई विल एक्सेप्ट कि चलो नहीं हुआ, बट एटलीस्ट आई विल ट्राई. तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था, क्योंकि आई न्यू दैट आई विल बी गेटिंग अ जॉब अगेन इफ आई एंटर द जॉब मार्केट इन कॉर्पोरेट. एज यू सेड, इट इज नॉट दैट अनसर्टेन. So I wanted to give it a shot. Secondly, the way the that inner motivation where you know why you are going to do this, that I had very clear why I want to do this, what exactly are the things that, because I had seen the dearth of opportunities. I always talk about the issues that people face in underdeveloped areas, and that is the lack of opportunities that are there. So I always wanted to be a person who would provide that opportunities on the ground level to the people. And civil services is going to be, I think, the most critical thing in this whole event of providing opportunities to the people at the ground level. So that was something which I had too much ingrained in my mind, because I have seen my sisters not getting that Hmm. opportunity, or for that matter my friends not getting that opportunity, because somewhere maybe they lacked the direction, and also somewhere maybe a bit background issue, or maybe an issue from their side of not being that clear about what they want to do in life. But Hmm. obviously, no one wants to just study and do good in life. So the kind of opportunities that one should get in life to excel in the field they want to, that is something particularly I had. And when I go for the cons, I did not have much, because then you had to try. If you don't clear, you'll come back to the field. Matlab, you can anyway work and earn for yourself. राइट. आई थिंक कमिंग फ्रॉम दैट मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आप इतनी लाइफ देख लेते हो कि आपको लगता है कि चलो आईआईटी में आ गए तो मैंने अपने लिए तो अपना रोजी रोटी का देख लिया,
अब क्योंकि राइट, राइट। somehow somebody has provided me, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अब इसको 10x करके लौटा पाऊँ। एंड वो हुँ, हुँ, आपको कहीं हुँ। न कहीं लगता है कि जॉब में बस मैं अपना पेट पाल रहा हूँगा, अपनी लग्ज़रीज़ का ख़्याल रख रहा हूँगा, बट शायद मैं इस मीडियम में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फैसिलिटेटर बन सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एटलीस्ट मेरे हाथ में वो मौके तो होंगे, मेरे पास वो नेटवर्क तो होगा, मेरे पास वो इन्फ्लुएंस तो होगा कि वेयर आई कैन सी कि हाँ, देयर इज़ समबडी हू इज़ kind of is not able to get privileges. I can be the mediator, I can be the connector. I think that is a summary of what you said. Coming from a middle class background, you have seen the pain and somewhere you felt कि ठीक है, अगर इसी चीज को दूर करने से मुझे खुशी मिलती है तो why not go for UPSC, राइट। right? क्योंकि I relate with this emotion because I had also this simple thought. मैंने भी बहुत क्लियर सोच रखा था, इंजीनियरिंग सर्विसेज करनी है, सिविल इंजीनियरिंग विल बी ऑप्शनल, तो इवन सिविल सर्विसेज करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग को ऑप्शनल को लेकर के, अगर सिविल सर्विसेज फंसता भी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज तो फिर भी एटलीस्ट बेसिक लेवल पे हुँ, हुँ। नौकरी को बचा लेगा, बट देन देयर वाज अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट ग्रेट। थोड़ा स्ट्रेटेजी पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि जो भी सुन रहा है मुझे लगता है कि दो तीन चीजें लोग जानना चाहते हैं कि वो जिन चीजों को लेकर के डिसीजन ले रहे हैं, वो क्या किसी इंसान से रिजेंबल करते हैं, तो उनका ना वो उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, यार ये मेरी तरह सोचता है, मैं भी इस तरीके से सोचता हूँ, तो ये मेरे लिए इनफ मोटिवेशन है। तो इसलिए हुँ, आई हुँ। डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट व्हाई somebody would want to choose when they have a n number of opportunities, but the second part that they love to hear about कि यार की कैसे तैयारी, what is the strategy? So I'll break it down. So like it is like divided into three parts: prelims, mains, interview. So for the prelims, what are the frameworks that you decided? I know that in depth बहुत सारे syllabus को डिस्कस नहीं करेंगे, बट व्हाट आर द हैक्स दैट यू डिसाइडेड कि यार प्रीलिम्स को लेकर के मेरा ये माइंडसेट रहता है कि मैं अगर इस तरीके से करूंगा तो समहाउ आई विल बी एबल टू डू बेटर देन द एवरेज इंडिविजुअल. सो इफ यू हैव फिगर्ड आउट एनी हैक और एनी मेंटल मॉडल फॉर प्रीलिम्स, इफ यू कैन शेयर दैट. अब प्रीलिम्स के लिए मेरा एक बहुत ही सिंपल फंडा है जो कि आज भी मैं सबको बोलता हूँ, एंड वंस यू अप्लाई इट ना, देर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल क्लियर विद द सेम लेवल ऑफ नॉलेज, एंड दैट इज कि अपने आप को एकदम शांत रखना है, जस्ट स्थिर रखना है एग्जाम हॉल में। प्रीलिम्स की सबसे बड़ी लड़ाई ना पहले नहीं होती है, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जो कहीं ना कहीं नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा है, और ये मैं जब बार बार बोलता हूँ ना, और यूपीएससी हर अगले साल के एग्जाम के साथ वो ज्यादा प्रूव कर रहा है कि ये बंदा सही बोल रहा है। somehow they are proving me right every next year। जैसे इस ईयर का प्रीलिम्स था, कितनी भी नॉलेज रख लो यू कैन नॉट क्लियर अगर शांत दिमाग नहीं है और स्ट्रेस थोड़ा सा भी आता है, तो एकदम आराम से जस्ट सिट इन द एग्जाम हॉल एंड फील कि पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, और जो कर सकते हैं करेंगे। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, वो मेरे को लगता है कि इज द बिगेस्ट एग्जाम हैक दैट आई हैव क्रैक्ड। एंड वन थिंग इज विनर्स माइंडसेट, कि कौन जीतेगा आखिर इस रेस में। व्हेन यू आर सिटिंग इन एग्जाम और क्वेश्चन टफ आते हैं ना, तो हमें लगता है बाकी लोग सही कर लेंगे और इसलिए हम पैनिक करते हैं। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा चलता है कि अगर मेरे को ये नहीं आता है तो कितने ही लोगों को आता होगा। तो दैट गिव्स मी कंसिस्टेंट मोटिवेशन इन द एग्जाम हॉल। दैट इज समथिंग। एंड बिफोर प्रीलिम्स व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, मेरा फंडा बहुत सिंपल रहता है कि टेस्ट दो, देखो क्या गलती कर रहे हो, और जो गलती कर रहे हो ना उस गलती को सही करने की कोशिश करो, उस गलती को लिखो एक जगह कॉपी में कि ये गलती की मैंने, ताकि Hmm. जब एक बार लास्ट में एग्जाम देने जा रहे हो ना, उससे पहले 3-4 बार ना उस कॉपी को ही रिवाइज कर लिया हो कि मैं ये गलतियां करता हूँ, इस तरीके से सोच के। तो एटलीस्ट ना वो मे भी अगर हमने 50 गलतियां फिगर आउट की हो, तो उन 50 में से हम 25-30 गलतियां ऐसी हैं जो एग्जाम हॉल में ना दोहराएं। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं ना, तो हम बहुत इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी उन्हीं गलतियों को जो हमने प्रीलिम्स में पहले की है मॉक्स में, वो एग्जाम में दोहरा देते हैं। Agreed. And I'll also kind of be on the same page with you. I call it a पापों को घड़ा. Like when I prepared for engineering services, मैंने एक डायरी बना ली, क्योंकि इतना सारा वैल्यूज है इसमें, फॉर्मुलेस रिवाइज करना है, तो मैंने उसमें ना जो भी टेस्ट सीरीज में गलत होता था, मैं उसका वो वापस से, भले ही वो मेरे शॉर्ट नोट्स में, बट इसमें भी लिखता जाता था कि यार यहाँ पर वो कैलकुलेशन एरर हो गया, यहाँ पर मैं वैल्यू भूल गया, यहाँ पर मुझे वैल्यू का कंफ्यूजन आ गया. एंड जो जैसे कहा ना कि आपने कि एग्जाम से पहले यू वांट टू फील कॉन्फिडेंट, द ओनली वन थिंग दैट वाज गिविंग कॉन्फिडेंट कि मैं अपने पापों का घड़ा देख करके आया हूँ. जो चीज मुझे याद नहीं रहती वो मैंने रिवाइज करके आया हूँ, तो बाकी राइट, चीजें राइट, राइट। इवेंचुअली मुझे याद ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की ना डर वहां लग जाता है कि यार वो जब दिमाग लगाते हैं कि यार वो चीज तो याद ही नहीं आ रही,
तो उनको लगता है कि यार बाकी चीजें भी भूल गया होगा। तो मतलब आई थिंक इफ एनीबडी इज हियरिंग दिस, दे शुड मेक दिस डायरी और दिस पेज वेयर दे कैन कॉल देयर पापा का गड़ा के, हाँ, जहाँ पर वो सारी जो कॉमन मिस्टेक्स है, क्योंकि जो चीज आपसे पहली बार गलती हुई ना, वो आप 4 साल बाद भी सेम उठाओगे तब भी वो सेम गलती होगी, सही बहुत बात ज्यादा है। चांसेस है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेंस, तो मेंस की क्या हैक, मतलब क्या तुम्हारे लिए क्या हैक रही मेंस की जर्नी को लेकर के? मेंस के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट हैक ये रहा है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, हमको लगता है कि सब पढ़ लेते हैं, हम एग्जाम में ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर अल्टीमेटली व्हाट एग्जामिनर इज गोइंग टू रीड इज योर कॉपी। हम्म। तो यू शुड नो हाउ टू राइट रेदर देन हाउ टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मैंने क्या किया, अपनी प्रिपरेशन शुरू करने के पहले महीने में, विच इज वेरी वियर्ड, आई डोंट थिंक एनी अदर टॉपर वुड हैव डन दिस, मैंने पहले महीने में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है मेंस की, अपनी प्रिपरेशन के पहले महीने में, विच इज वेरी वियर्ड, कोई नहीं करता है, लेकिन मैंने करी। क्योंकि मेरे को ये क्योंकि पहले मेंस की तैयारी करते हैं, बाद में प्रीलिम्स के एग्जाम के 3-4 महीने पहले शुरू करते हैं, बाकी एक साल पहले से तो मेंस ही पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने जैसे ही तैयारी शुरू की ना, मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ता था उस सब्जेक्ट पे टेस्ट लिख के आता था मेंस के, और वो खराब, मैं सारे मेंस के पहले सिलेबस उठाता था, सारे सब टॉपिक्स पे जो भी नोट्स मैं बना सकता था 200-250 वर्ड्स के, वो पढ़ लेता था। और एग्जाम में जाता था, मेरे पास कंटेंट बहुत कम होता था, मतलब क्योंकि भूल भी जाता था उसमें, 250 वर्ड याद किया, 250 वर्ड लिखने थे और 100 वर्ड याद है, तो कहीं ना कहीं मेरे को नहीं याद होती थी चीजें। लेकिन मैंने एक चीज मेक श्योर कर ली थी कि मुझे इतनी ही चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। तो मैं टेस्ट जब लिखता था मेंस के ना शुरू में, तो मेरे बहुत ही कम नंबर आते थे, मतलब आई यूज टू टॉप फ्रॉम बॉटम हर टेस्ट, उस टेस्ट सीरीज में। बट मैंने एक चीज दिमाग में बैठा ली थी कि मुझे यही प्रोसेस आखिरी तक करना है। उससे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गेन की, वो ये है कि जब भी हम गलतियां करते हैं ना किसी चीज में, तो वो हमें जरूर याद रहती हैं। जब भी हम हाँ, टेस्ट में कोई चीज गलत लिख के आते हैं ना, तो हमें याद रहता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने गलत किया था, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत तेज गलतियों को पकड़ता है अपनी। तो मैंने वो चीज का यूज किया अपने माइंड को, मतलब कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया अपने माइंड के जो वो है, मतलब वल्नरेबिलिटीज हैं। और मैं टेस्ट लिख करके आता था, नंबर कम पाता था तो पता रहता था ये गलती करके आया हूँ, और वो चीजें दिमाग में याद हो जाती थी। तो फिर जब अगली बार उस सब्जेक्ट का टेस्ट देता था, तो वो गलतियां तो नहीं रिपीट करता था। इस तरह से मैंने जब 2-3 आइटरेशन में एक ही सब्जेक्ट के टेस्ट दे लिए, तो एटलीस्ट मैं इस लेवल पे पहुंच गया था कि मैं किसी भी मेंस के पेपर में एवरेज मार्क्स तो ले आऊंगा, जस्ट बिकॉज आई हैव क्रैक्ड कि मैं क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स करता हूँ। तो दैट हैज बीन एग्रीड माई एग्रीड मॉडस ऑपरेंडी फॉर मेंस। एग्रीड एग्रीड यार, ये बहुत सही चीज है। मतलब मैं ना उस स्पोर्ट से रिलेट करता हूँ। लाइक आई एम अ हॉकी प्लेयर, सो जब कॉलेज में खेलते थे, तो खेल रहे हैं, तो मैंने डॉज मारने की कोशिश करी है, सामने वाले प्लेयर ने टैकल कर लिया। अब मैं रूम पर जब लेटा हुआ हूँ, तो मेरे दिमाग में है कि यार मैंने उस बंदे ने टैकल कर लिया, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कुड हैव डन सो दैट ही वुड नॉट हैव टैकल्ड मी नेक्स्ट डे। नाउ आई नो द हैक, एंड आई थिंक यू हाईलाइटेड दिस कि भाई आप जितनी ज्यादा गलतियां कर लो, ताकि आपको आपके पास वो चीज का रिकॉर्ड रहे कि इससे इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, इसका जो रिजॉल्व वर्ड वर्जन क्या है। ग्रेट, मतलब बेसिकली आई थिंक स्किल इज वन थिंग दैट यू हैव रियली वर्कड ऑन इट, rather than just in increasing your knowledge, you have worked on the skill which is required in the mains. मतलब एग्जाम में अल्टीमेटली वो हमारी कॉपी पढ़ रहा है, तो वी हैव टू इम्प्रूव ऑन राइटिंग। अब हम कितना Exactly. भी पढ़ ले, मतलब हम क्या ही कर लेंगे अगर हम अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। और मैं कम मार्क्स पाता था, तो मुझे ये तो पता चल रहा था ना कि मैं अभी खराब लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। अगर लोग क्या करते हैं इस एग्जाम में ना, कि प्रीलिम्स तक कुछ नहीं लिखते हैं, सोचते हैं प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए लिख ही लेंगे। टिल द टाइम यू विल नॉट स्टार्ट राइटिंग, यू विल नॉट कम टू नो कि क्या गलतियां करता हूँ। तो मेरे को मालूम था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे को लिखने तो नहीं आता, क्योंकि मैं आईटी रुड़की में, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस में 4 लाइन लिख के आ जाता था, एंड आई यूज्ड टू नेवर गेट मार्क्स इन दैट। तो आई न्यू आई एम वेरी बैड एट दैट एस्पेक्ट। तो आई थॉट कि सबसे पहले यही करेक्ट कर लेना है, कि लिखना सीखना है कि कैसे लिखते हैं चीजें। Honestly speaking, if I would have been aspirant, I would have followed you because I think I relate here a lot. I have a zero written communication skill, honestly speaking. मेरा डर ये भी था कि शायद मुझे 1 साल अपनी इसी चीज में गंवानी पड़ेगी सिविल सर्विसेज में, कि मेरे को पहले रिटन कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी है, क्योंकि मेहनत तो कर लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट रिटन कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसे काम करना पड़ेगा। आई थिंक यू आर गिविंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि बॉस अगर नहीं भी है, so this is one way of operating that you can work on your written communication skill. Great. Now if we talk about interview, what's the heck or what have you figured out what interview is all about? What is at least bare minimum somebody should do to perform average and above average? मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि माय ऑप्शनल एंड इंटरव्यू मेड मी आईएएस। तो
मतलब in interview I got really good marks, and one thing I owe again my marks to is my calmness and my a bit casual approach towards interview. मतलब I did not used to take load कि क्या पूछ लेगा तो मैं कैसे आंसर करूंगा. आई यूज टू बी ऑलवेज बी लाइक कि जो भी पूछेगा नहीं आता होगा तो बोल दूंगा नहीं आता है, क्योंकि मुझे सब कुछ तो नहीं आता है. और किसी भी आईएएस ऑफिसर को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को सब कुछ आना जरूरी है नहीं, लेकिन किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आई शुड बी वेरी काम. अगर मैं काम नहीं हूं, थोड़ा सा भी पैनिक किया ना तो पूरा का पूरा जिला पैनिक कर रहा होगा. एंड दिस इज व्हाट दे आर सीइंग इन अस. मतलब इंटरव्यू बोर्ड में जो बंदा बैठा है कहीं ना कहीं वो यही देख रहा होगा. तो मैंने वो इंटरव्यू जो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इन्होंने वैल्यूज लिख रखी है ना यूपीएससी ने अपने सिलेबस में, कि काम, कंपोज, थोड़ा बहुत नॉलेज का अवेयरनेस, और ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी का टेस्ट है, उन्होंने क्लियरली लिख रखा है. तो आई एक्चुअली बिलीव्ड इन देम कि इन्होंने अगर नोटिफिकेशन लिख रखा है तो ये वही चीज चेक कर रहे होंगे. और इन इंटरव्यू आई वाज वेरी 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 चिल अबाउट इंटरव्यू. मेरे को ये था कि जाके बात करके आएंगे, ऑफिसर्स हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं. मतलब बिकॉज यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनैलिटी, और मेरी पर्सनैलिटी ये रही है कि आई एम वेरी चिल अबाउट थिंग्स. मतलब एग्जाम से पहले आई विल बी फीलिंग वेरी मच प्रेशर एंड स्टार्ट लाफिंग to reduce my stress. So that's how I entered my interview room, and I did not, and frankly telling you, I've always told, in fact one of the persons who is improving his rank, ठीक है, 2 बार से, तो मैंने दोनों बार से यही बोला है उस बंदे को कि भाई कामली जाओ, मत पढ़ के जाओ वो ठीक है, लेकिन प्रेशर लेके मत जाना. एंड ही हैज इंप्रूव्ड हिज इंटरव्यू मार्क्स फ्रॉम 155 टू 173, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन वैल्यू कि लोड लेना ही नहीं है, जो होगा होगा. तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा पढ़ के नहीं गया था, बट आई गॉट मार्क्स इन इंटरव्यू ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग. आई वर्कड ऑन keeping myself very chill about anything that happens in interview. So even when I messed up initially in 2 or 3 minutes, I did not even wish the interview board. They wish me, and then I wished, oh, sorry, good afternoon, ma'am. They were very chill about it because they could see a constant smile on my face. I was wearing mask के ऊपर से they could decipher that I am smiling, that small हाँ. smiling face, क्योंकि ये visible होता है face से कि you are not nervous. That is something I know, I believe. Yes. आपकी आंखें कम्युनिकेट कर देती हैं कि आप स्माइल कर रहे हो. Right. I think I think like from the, because now I'm also in service and I can see this, that the most important quality that somebody seek in a leader is emotional quotient, how emotional intelligent they are. So I think if somebody is able to make themselves calm in a situation, it's a signal, it's a sign of high emotional intelligence. Hence they can consider कि हाँ, this person can be a good leader, and that can be one basis on somebody can evaluate you. So definitely it's again a good framework to think about interview, because ज्ञान तो अथाह है भाई, मतलब उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, कुछ भी आ सकता है. at Right. least at least control what you can control, and it is the one most basic fundamental thing which you can control, that keep yourself calm, make yourself pleasant. क्योंकि वो प्लेजेंटनेस ना रिफ्लेक्ट होती है, सामने वाले को लगता है कि बंदा बहुत बढ़िया था, पता है भले ही ना हो पर बंदा बहुत बढ़िया था. वही. और दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम हंस करके ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता है ना, दैट मीन्स वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स कि जितना पता Yes. है उतना एनफ है. अगर हाँ. हम पैनिक होकर के बोलते हैं ना कि नहीं पता है, और नर्वसनेस फेस पे दिखती है, सामने वाला पर्सन नोज दिस पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, और अगर हम्म. हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और अगर बंदा खुद में बंदी खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मतलब कैसे अपने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को या फिर सब डिवीजन को या फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पॉलिसी मेकिंग इज देयर, तो पूरे के पूरे कंट्री को कैसे मैनेज करेगा. तो वो एब्सोल्युटली. एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली वो गेज कर लेते हैं कि भाई, वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. दे सी दैट कि भाई ये अभी काम पर है, बाद में भी ना हो पाएगा इससे. सो लाइक दिस यूपीएससी जर्नी इज डेफिनेटली ग्रूसम, बट देयर इज अ गुड साइड ऑफ इट आल्सो, कि कहते हैं ना कि मुकम्मल भी चीजें होती हैं और नहीं भी होती हैं, तो भी बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं. बट दैट्स क्योंकि तुम्हारी जर्नी मुकम्मल हुई है, बट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, like when you have completed your UPSC journey, what had been your learnings from this perspective? There are two kind of learning. One is like on the other day I was discussing with Karthik Verma sir. Like he's our college senior and he's getting IPS service this year. तो बोल रहे थे कि दो लर्निंग है बॉस, एक इंफॉर्मेटिव लर्निंग, एक ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग. इंफॉर्मेटिव लर्निंग इज कि मेरे को इंफॉर्मेटिव, मुझे ज्योग्राफी के बारे में पता चल गया, हाँ, मुझे ज्योग्राफी, लोगों की, हाँ, कल्चर एटसेट्रा. फिलोसफी, थ्योरी, ये सब चीजें मुझे थोड़ा राइट पता राइट. चल गया. And then transformative, like I get to know about myself. So I love to hear those things कि ऐसी क्या informative learning रही
यार ये ज्ञान बड़ा बढ़िया लगा मुझे कि अगर मैं यूपीएससी में नहीं जाता क्योंकि मेरी आम जिंदगी से इसका कुछ लेना देना नहीं होता, तो आई वुड हैव नेवर रेड इट, आई वुड हैव नेवर अंडरस्टूड, आई वुड हैव नेवर शोन इंटरेस्ट, बट नाउ आई हैव रेड इट, आई फील गुड। अगर ऐसी कुछ इंफॉर्मेटिव लर्निंग रही होगी, कुछ किताब पढ़ने से कुछ ऐसा ज्ञान वाली चीज मिली हो तो प्लीज डू शेयर। अब बिगेस्ट चीज तो मैं बताऊं जो कि मैं कभी भी यूपीएससी में नहीं आता तो नहीं करता, वाज नोइंग अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द कंट्री। मतलब मैं कभी भी नहीं, मतलब आई वाज नेवर इंटरेस्टेड। पॉलिटी आई वाज इंटरेस्टेड कि कैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। इकोनॉमी आई वाज इंटरेस्टेड, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट्स में था तो यू वांट टू नो। बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड कि ये क्या, मतलब हिस्ट्री क्या। आई ऑलवेज यूज्ड टू गेस बोर्ड कि ठीक है जो भी हुआ वो हुआ, बट की इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री की और कैसे हिस्ट्री आज के टाइम पे सोसाइटीज को शेप कर रहा है। मतलब आई गॉट टू नो और इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। मतलब अभी ये हो गया है कि इफ फ्रॉम काइंड ऑफ हेटिंग हिस्ट्री की कैसे मगअप करूं इस चीज को या डेटा फैक्ट्स को, टू गोइंग एट सर्टेन प्लेसेस एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस जगह की हिस्ट्री क्या होगी। मतलब आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड दैट मच इन दिस जर्नी। तो वो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेटिव लर्निंग हुई है ना मेरी हिस्ट्री की, वो मुझे ट्रांसफॉर्म भी किया एज अ पर्सन। तो आई एम जस्ट लिंकिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग, कि जो इंफॉर्मेशन मुझे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मिली है, दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय ओन थिंकिंग अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ऑल। सो एंड हम्म। दैट इज समथिंग आई ट्रूली कैन नॉट बिलीव कि मेरे अंदर हुआ है, but that has happened. And informatively I got to know geographically India कहाँ से कहाँ तक क्या क्या चीजें हैं, क्या strategic points हैं, क्यों strategic points हैं, और क्या इंडिया चेंज कर सकता है, कहाँ पे हमें जरूरी ध्यान रखने की चीजें हैं जो कि ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। मतलब ऑल दोज एस्पेक्ट्स। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग के एस्पेक्ट से आई वुड सजेस्ट कि आई हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब इससे पहले आई यूज्ड टू टॉक एंड टेल कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। नाउ आई थिंक अ लॉट कि यार एक्चुअली कर सकते हैं क्या, बिकॉज आई नाउ एक्चुअली बिलीव कि कहीं ना कहीं मेरे वर्ड्स की वैल्यू है। तो यार यस। पहले बात तो सोचना चाहिए कि ये हो भी पाएगा। दूसरी चीज, कई बार ना मैं, अगर मेरे को लगता भी है ना कोई चीज कि हाँ ये 99% हो जाएगी, तो मैं नहीं बोलता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है यार इस 99 को 100 बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स की जरूरत है, जो मैं अभी पुट इन शायद नहीं कर सकता। तो मैं अगर बोल दूंगा कि कर दिया, कर देता हूँ, तो क्या मैं 99 को 100 बनाने के लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर पाऊंगा क्या। तो ये दो हम्म। तीन एस्पेक्ट्स हैं जो ये इस जर्नी में, मतलब यू लर्न, बिकॉज उससे पहले हम थोड़ा कैजुअल होते हैं लाइफ को लेकर के भी, और चीजों को लेकर के भी, कमिटमेंट्स को लेकर के भी। बट देन हम इस जर्नी के थ्रू रियलाइज करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, चीजों को लेकर थोड़ा सीरियस होना होता है, और डिसिप्लिन इज समथिंग दैट लीड्स अ पर्सन्स लाइफ। तो ये चीजें आई थिंक मेरे अंदर बहुत ज्यादा आई हैं विद दिस जर्नी। एब्सोल्युटली। सो इफ आई हैव टू से कि थोड़ा ठहराव और सुलझापन आ गया है। हाँ, काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। और वो इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी तक का जो सफर होता है ना, व्हेन यू फेल, इवन इन ए मॉक एग्जाम, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आए हों, छोटे छोटे, तो वो सारी चीजें जो है एज अ पर्सन चेंज करती हैं। Absolutely. I think grind purify your heart and mind as well. तो जब आप ग्राइंड के थ्रू जाते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो यूपीएससी हो, जहाँ भी जर्नी में जिसमें एक्स्ट्रा ग्राइंड लग रहा है, इट प्योरिफाइज यू। Arpit, I know about that journey, but I would want to talk about it through you, about the wellness that during this journey, people talk about, and I'll come on that topic also. People think about a lot which optional to choose, which coaching to choose, how to prepare, right? Like they count on all the variables which is included in this preparation, but they miss out on this variable called health, है ना? दे फील दैट ये तो है ही, इसको भी क्या काउंट करना है, इसको भी कितना मैनेज करके चलना। तो कैन यू थ्रू योर जर्नी कैन यू हाईलाइट दैट हाउ मच हेल्थ इज इम्पोर्टेंट इन दिस जर्नी, one aspect, and in general how much important it does have in one's life. I would tell you the importance of health in this journey by quoting myself. I would have cleared this exam in first attempt if my health would have been fine. So it is very well known. I would actually narrate that my first attempt journey. For you, fell ill in prelims in first attempt. 15-20 days I was on bed, and अचानक से 2 दिन पहले एग्जाम के I was fine, और मैं prelims देने चला गया. I cleared prelims. I came back to again college seniors whom I was living with, and they were like कि अब तो तबीयत मत खराब करना, and then again I took things
इन अ बिट लेजी वे कि ठीक है अब तो क्या ही हो, एक बार हो गया हो गया। मेंस के 20-25 डेज पहले चिकन पॉक्स हो गया मुझे, एंड आई हैड टू गो बैक टू होम। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट स्टोरी कि चिकन पॉक्स हो गया, मैं घर गया, 20 दिन घर पे रहा। 2 दिन पहले आई अगेन केम बैक टू दिल्ली, मेरा सेंटर था दिल्ली में। और मैं आया तो क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू रिकवर फुल्ली फ्रॉम चिकन पॉक्स, आई गॉट निमोनिया। क्योंकि चिकन पॉक्स में जब भी रिकवरी नहीं होती है एंड वीकनेस इज देयर, एंड इफ यू आर एक्सर्टिंग योरसेल्फ तो निमोनिया होता है, मतलब विच इज वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है। मुझे भी हो गया निमोनिया। अब पॉइंट ये था कि दिल्ली में जनवरी में इट्स 4 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, एंड माई बॉडी इज मतलब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इट इज 102 101 ऐसा बुखार है मुझे। एंड इन दैट सिचुएशन आई यूज टू राइट मेन्स। तो आई हैड ऑलरेडी गिवन अप, मतलब ऐसा था कि मुझसे होगा ही नहीं, बिकॉज हेल्थ वाइज व्हेन यू आर नॉट फाइन तो कहीं ना कहीं यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक थिंग्स। यस, तो यस। इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से, और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि जनरल की कट ऑफ मेंस की आई 736। जब फाइनल रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद मार्कशीट पे मुझे पता चला कि मेरे 735 थे। तो आई वाज ओह! समवेयर मतलब मे बी 20 मार्क्स लेसर फ्रॉम द सिलेक्शन, एंड मे बी 50-55 मार्क्स लेसर फ्रॉम बिकमिंग आईएएस ऑफिसर। एंड वो 50-55 मार्क्स अकेले सिर्फ मेरे ऑप्शनल से आ जाते इफ आई वुड हैव बीन फाइन, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, और मैथ्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, जो कि एग्जाम हॉल में आई मेस्ड इट अप, सारे कैलकुलेशन मिस्टेक्स करके आया, बिकॉज ऑफ विच आई लॉस्ट मोर देन 55-60 मार्क्स। तो दैट आई कैन सी कि अभी एकदम क्लियरली। तो सेकंड अटेम्प्ट में व्हाट आई चेंज्ड वाज, मैं चुपचाप घर चले गया, क्योंकि मैंने एकदम दिमाग में क्लियरली बैठा लिया था कि मुझे हेल्थ पे फोकस करना है रेदर देन ये फोकसिंग ऑन स्टडीज, क्योंकि वो अपनी हो गई है। और आई हैव टोल्ड दिस ऑन यूट्यूब इन मल्टीपल इंटरव्यूज कि हेल्थ को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सेकंड, और मैंने सिर्फ इससे एक, और मेंटल हेल्थ बिना फिजिकल हेल्थ खराब हुए भी गिव अप कर, चीज नहीं समझी कि फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट से ये भी सीखा कि कहीं ना कहीं मेरी मेंटल हेल्थ भी गिव अप कर रही थी एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि मेरी फिजिकल हेल्थ सही नहीं थी कर सकती है। तो मैंने दोनों एस्पेक्ट से बहुत ही क्लियर रखा खुद को। मेंटल, अब दूसरे अटेम्प्ट के जस्ट पहले 10-15 डेज पहले माय कजिन डाइड, विच वाज अ बिग, वेरी बिग सेटबैक फॉर मी। और जो बेसिकली एक काम होता है ना, जिस दिन भोज खिलाया जाता है सबको, ब्रह्म भोज खिलाया जाता है डेथ होने के बाद, वो उस दिन मेरा पहला पेपर था जिस दिन वो ब्रह्मभोज खिलाया जाना था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज अलोन गिविंग पेपर, एंड दिस टाइम माय सेंटर वाज इन लखनऊ। सो मैं लखनऊ में अकेला था, नो पापा मम्मी, नो वन वाज देयर, बिकॉज सब लोग घर पे थे बिकॉज ऑफ दिस इशू। पर मैंने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग रखा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने उस चीज के होने के बाद 10-12 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ा, पर दिमाग में एकदम क्लियर रखा था कि एग्जाम बहुत ही डिटर्मिनेशन से दूंगा, जो भी करूंगा अच्छे से करूंगा, और मैं वीक नहीं पढ़ने दूंगा खुद को, और गिव अप तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार गिव अप करके भी कट ऑफ के बराबर मार्क्स पाए हैं। तो ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ वाली जो चीज है ना, दैट इज समथिंग, मतलब जो अंडर एस्टिमेटेड है। लोग एग्जाम क्लियर करने के बाद 6-6 महीने तक आ नहीं पाते हैं एकेडमी, बिकॉज ओवरवेट होते हैं। यस, तो यस। एग्जाम, अभी आप सर्विस में, लेट्स से सर्विस में आ जाते हो, 10 साल बाद यू आर सफरिंग फ्रॉम न्यूमरस डिजीजेस, बीपी, हाइपरटेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, डायबिटीज, जो भी है, एंड यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर लाइफ। तो 10 साल बाद सर्विस में आने के बाद आप खुद के लिए लाइबिलिटी हो कहीं ना कहीं, तो जनता के लिए कितनी चीजें कर पाओगे। तो दैट वे एब्सोल्युटली। आई थिंक हेल्थ मैटर्स बिफोर द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम, एंड आफ्टर द एग्जाम, तीनों वे में। एब्सोल्युटली। आई थिंक इट्स अ मेक और ब्रेक। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कोई इंसान बहुत ही डिसिप्लिन्ड है तैयारी को लेकर के, और वो अपनी हेल्थ को बचाए बचाए रख सकता है लंबे समय में, तो कोई भी इंसान मतलब उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता, अगर वो राइट। कंसिस्टेंट है, स्मार्ट अप्रोच है और हेल्थ मेंटेन रख रहा है। मुझे लगता है बहुत लोगों को लास्ट मोमेंट पे जो ब्रेक करती है, दैट इज हेल्थ। And it, as I said, कि मतलब was also in the same journey, but and I had this mental breakdown. Now it has turned out to be a blessing, and we started this initiative where we are trying to spread good health. But through you, I would want to highlight that whosoever is listening, please do have this consideration that you have to put equal, at least some importance to your health on every day, and you will be sailed through. है ना? At least ये होगा, क्योंकि to be very honest, it gives a lot of pain to us when I have met a lot of people who have gone on that stage कि यू तैयारी छोड़ो, सर्वाइवल के लिए फाइट चल रही है। हाँ। तो भाई उस लेवल पे तो नहीं जाओ कम से कम, है ना? यूपीएससी इज नॉट द एंड, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। ग्रेट। सो यस,
मैं सवाल पूछना भूल गया था वो, एंड दैट वाज अबाउट ऑप्शनल, बिकॉज अगेन दैट्स अ मेक और ब्रेक डिसीजन इन दिस जर्नी. सो हाउ यू डिसाइडेड, लाइक मैथ्स वाज नॉट योर, मतलब योर कोर फील्ड, बेसिकली आपका इंजीनियरिंग का वो सब्जेक्ट नहीं था, स्टिल यू चोज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. सो हाउ डिड योर जर्नी ऑफ इवेल्युएटिंग कि यार ये ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है, एंड हाउ समबडी कैन इवेल्युएट कि यार क्या चीजें तुम काउंट कर सकते हो कि यार ये ऑप्शनल रिलेटिवली कैन हेल्प मी स्कोर वेल as compared to other options. So if what's your perspective about it? मेरा बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव है। ऑप्शनल वो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, इसीलिए क्योंकि ऑप्शनल हम चूज कर रहे हैं, ऑप्शनल वो सब्जेक्ट होना चाहिए जहाँ पे हम दूसरों से एक एज ले सकें, क्योंकि बाकी और कहीं पे ना यूपीएससी इज नॉट ऑफरिंग अस दैट ऑप्शन। तो ऑप्शन, ऑप्शनल, ये दोनों वर्ड्स इस तरह से लिंक्ड हैं कि यूपीएससी इज ऑफरिंग यू एन ऑप्शन जहाँ पे आप एक्सेल कर जाओ दूसरों के ऊपर। तो मेरे लिए वो मैथ्स था, क्योंकि जेई एडवांस टाइम पे भी आई हैड मैथमेटिक्स एज समथिंग दैट वाज वेरी वेरी गुड, मतलब दैट वाज वेरी वेरी गुड। ठीक है, Hmm. कमांड काफी अच्छी थी मेरी। और दूसरी चीज, कॉलेज में भी देन अगेन मैथ्स के सब्जेक्ट पे आई हैड रियली गुड कमांड। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्लियर होता गया कि मैथ्स लेना ही है। और जैसे जैसे मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा, क्वेश्चंस देखे, और जो सब्जेक्ट्स मैंने पहले पहले कॉलेज में एक दो सब्जेक्ट्स पढ़ रखे थे यूपीएससी के सिलेबस वाले, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं ये पढ़ लेता हूँ तो इट्स नॉट दैट टफ। मतलब इट्स ऑल अबाउट स्टडीइंग। और मैं, क्योंकि मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे हमेशा इंटरेस्ट था कि पढ़ लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो मैं कभी भी ना उसे शाई आउट नहीं करूंगा कि इस पूरी जर्नी में कि अरे नहीं यार बाद में पढ़ लेंगे या फिर नहीं हो रहा है टाइप, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था उस चीज में। तो आई टुक इट एंड आई हैड द टारगेट कि 300 क्रॉस करना है मैथ्स में। क्योंकि दिस Hmm. इज ओनली, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियरली थी कि मैं हमेशा सबको बोलता भी था कि अगर मेरे मैथ्स में 300 नंबर नहीं आया तो मैं आईएएस नहीं बनूंगा। तो आई गॉट 306 एंड आई बिकेम आईएएस ऑफिसर। तो काइंड ऑफ दैट साइकोलॉजी ना कि 300 नंबर नहीं आएंगे तो नहीं बनूंगा, इट एक्चुअली मतलब कहीं ना कहीं ट्रू नहीं थी। अगर मेरे Uh, 290 भी आते तो बन जाता। बट पॉइंट वही है कि दैट, मतलब that made me bring the 306 in maths, and that actually helped me become IAS। तो वो कहीं ना कहीं absolutely. रहता है। वो एज जो है ना जो बाकी लोगों पे लिया, बाकी लोगों के ऑप्शनल में जितने नंबर थे, मतलब कहीं ना Hmm. कहीं लेट्स से टॉप 100 पे जितने भी लोग थे उनमें मुझसे ज्यादा तीन चार ही लोग होंगे जिनके ऑप्शनल में थे, तीन चार भी नहीं होंगे शायद। तो अच्छा. मतलब वही है कि दैट वाज माय मतलब गेम जहाँ पे मैंने एक्सेल किया लोगों पे, क्योंकि मुझे मालूम था जीएस में आई डोंट हैव दैट हाँ, एज। वहाँ वहाँ पर तो हमारा हमारा बैकग्राउंड बीच में आ जा रहा है, हमारी स्किल बीच में आ राइट जा रही है. राइट राइट। बट यहाँ पर हमारे वो जेई की प्रिपरेशन हमको वो एडवांटेज दे रही है कि भाई तुमने घिसा है, मैथ्स पढ़ा है तुमने, तो व्हाई डोंट यू लेवरेज इट. राइट। बढ़िया. तो मतलब आई थिंक व्हाट कम्स नेचुरली टू यू, इफ यू कैन ऑप्ट, देन उससे बेहतर कुछ भी नहीं है. हम्म। बट इन जनरल अगर मान लो अर्पित, जैसे होता है ना कि सब लोग, कुछ लोग जनरलिस्ट होते हैं कि यार ठीक है, आई एम इक्वली गुड इन ऑल द फील्ड, ऐसा कुछ मैंने पर्सनली किसी फील्ड को बहुत घुस करके नहीं देखा है. तो इन जनरल जो मार्केट में या तो यू हैव सीन पीपल लाइक इन इन अंडर हंड्रेड्स रैंक, what people have chosen optional and what had been their perspective about choosing their optional, like your view, just like. मोस्टली देयर व्यू हैज बीन द सेम। कई लोगों का जीएस बहुत अच्छा होता है तो वो ऑप्शनल ऐसा हाँ. ले लेते हैं जहाँ पे 260-70 निकाल ले बस किसी तरह, अच्छा. और उसके बाद दे यू नो क्लियर द एग्जाम। कई लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है, कई लोगों का ये हम्म. पर्सपेक्टिव होता है कि ऑप्शनल में ही फोड़ना है, बाकी जीएस में देख लेते हैं कैसे करना है। तो आई हैव फाउंड 2-3 कैटेगरीज ऑफ पीपल, बट ये जो 2-3 कैटेगरी ऑफ लोग हैं ना, इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनाई है ऑप्शनल को लेकर के। उन्होंने ऑप्शनल को सेंटर में रखा है और हम्म. इसके अराउंड स्ट्रेटेजी अपनी पूरी जो है बुनी है कि ऑप्शनल में कितने नंबर लाने हैं और इसके कंपैरेटिवली मुझे जीएस में कितना ज्यादा फोकस करना है। तो ऑप्शनल में हम्म. अगर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है तो भी सेंटर में वही है, क्योंकि उसी के हिसाब से जीएस की भी पढ़ाई हो रही है। राइट, राइट, राइट. ऑप्शनल को सेंटर में लेकर के बाकी डिसीजंस को एवेल्युएट करना वुड बी द राइट वे टू थिंक. हाँ। ग्रेट, ग्रेट. सही है. मतलब ये चीज भी काफी वैलिड है कि अगर मान लो किसी की रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो उसे, जैसे आई थिंक ऑन द अदर डे आई वाज डिस्कसिंग सर ओनली, कार्तिक सर, सो ही सेड यार मैं ये देख रहा था कि मुझे जीएस तो पढ़ना ही है, तो किस में थोड़ा सा पार्ट ज्यादा मैच कर रहा है, कि हाँ। वैसे भी जीएस पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ लूंगा, तो दैट बिकम्स अ बेटर वे टू चूज. डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो राइट दैट्स राइट व्हाई राइट। वी सेड ना कि मतलब जितने लोगों का पर्सपेक्टिव जानेंगे तो
डिफरेंट पर्सनैलिटी विल सी कि यार ये अर्पित जो बोल रहा है आईआईटी वाला बंदा है, मैथ इसका भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, लेट्स गो विद मैथ. एंड आई थिंक one of my junior has taken a math optional, like I stayed with him back then. So I think I don't know if he has inspired from you where he had taken maths as optional, but let's hope for him that it works out well for him. Obviously, yeah. Great. Let's Now hope for that. हाँ बिल्कुल. So now the next question about after getting into services, the most the most sought experiences about Labasna. तो थोड़ा अपने through take us how the Labasna was, how the whole feeling was. How was your experience of Labasna? I personally will say that Lavasana has been outstanding. मतलब it has been something which you think कि ऐसा होगा और वैसा ही रहा है. मतलब you enter Lavasana तो आपको लगता है कि finally your dream has been fulfilled. फिर शुरू में ना it has been very tough journey क्योंकि आपको सुबह 5 बजे जगना पड़ता है and you slog throughout the day. ठीक है. तो वो थोड़ा टफ लगता है शुरू में, बट देन व्हेन यू गेट अकस्टम्ड, लोगों से बात करते हो, उनकी टफ जर्नीज के बारे में जानते हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल कि आप ऐसे लोगों के बीच में हो जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एंड देयर पर्सपेक्टिव इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ इवन इफ यू हैव नॉट फेस्ड दैट. तो ये हाँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरी, लबासना गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल विद सो वैरिड पर्सपेक्टिव ना, कि मतलब योर होराइजन ब्रॉडन्स टू, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, इन्फिनिटी लेवल का ब्रॉडन हो जाता है. मतलब अभी इसके बाद ना यू विल मीट एनी काइंड ऑफ पीपल एंड यू विल बी लाइक यार ये मैंने देख रखे हैं, बिकॉज वहां पे इतने डाइवर्स लोग आते हैं. और सीरियसली दिस सर्विस इज समथिंग ना जिसके लिए, मतलब जिसमें हर किसी के लिए स्कोप है. तो अच्छा. बहुत ही अलग अलग लोग आते हैं. बाकी छोटी छोटी चीजें होते रहती हैं, छोटे छोटे ऐसे लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए गेम्स खिलाते रहते हैं. फिर दे मतलब देयर विल बी क्लब्स गेम्स होंगे जहाँ पे टीम गेम्स होंगे, जहाँ पे यू जस्ट गो. और स्पोर्ट्स काउंसिल है तो वहाँ पे बहुत मजा आता है, पीपल मीट, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं. फिर किसी को साइकिलिंग पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, सब अपने अपने ग्रुप्स देख लेते हैं कि ये लोग घूमने वाले हैं तो उनके साथ वहां निकल जाओ, यहाँ निकल जाओ. धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं ऐसे. फिर इसके बाद ऐसा होता है ट्रैक्स पे जाते हैं हम वीकेंड पे, तो ट्रैक वाले भी लोग हो जाते हैं कि जो धीरे वॉक करते हैं वो साथ में हो जाते हैं, जो तेज वॉक करते हैं वो साथ में हो जाते हैं. तो धीरे धीरे करके देन लॉट्स ऑफ पीपल आल्सो फाइंड देयर लाइफ पार्टनर्स ऑन ट्रैक्स. तो दैट्स हाउ इट हैज बीन इन लवासना. ठीक है. एंड देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ लव स्टोरीज ऑफ ट्रैक्स. तो अगर आईएएस ऑफिसर्स की जो मतलब सीरियस फेसेस हैं एज अ कलेक्टर्स के पीछे की जो रोमांटिक लव स्टोरीज हैं वो प्रोबेबली लवासना ट्रैक्स की रही होती हैं. तो दैट्स हाउ इट इज. तो वो चीजें चल रही होती हैं. फिर हम मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं जहाँ पे वी गेट सो मेनी फैसिलिटीज. बट वही है कि हम एक बहुत ही ठंडी जगह पे रह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी एक कस्टम नहीं होती है, बीमार पड़ते रहते हैं, टेरान बहुत फेवरेबल नहीं है. फिजिकली हम काफी हार्ड वर्क कर रहे होते हैं क्योंकि हर दिन ऊपर चढ़ के जाना आना, कहीं भी वॉक करना है तो इफ यू आर वॉक हर जगह मोस्टली वॉक करना है. यू कैन नॉट गो एनीवेयर ऑन मतलब कार और समथिंग क्योंकि टेरेन ही नहीं है वैसा. तो हाँ. कहीं ना कहीं यू लर्न कि क्या इंपॉर्टेंस है हार्डवर्क की, फिजिकल हार्डवर्क की, क्योंकि काफी सारे लोगों ने तो किया ही नहीं होता फिजिकल हार्डवर्क. फिर हाँ. ये चीजें हैं. उसके बाद एक डेली रूटीन लाइफ में आ जाता है कि सुबह उठ के ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. यू फील वेरी सॉर्टेड इन लाइफ की ये चीजें करनी है. फिर मतलब काफी सारी चीजें हम लर्न करते हैं, काफी सारे डिफरेंट लोग आते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से पता चलता है कि अच्छा ये भी नई चीज है जो हो रही है, जो हम फेस करेंगे. तो इट हाँ. वाज ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. यू गेट गुड पीपल अराउंड जिनसे आपकी वाइब मैच करती है. फिर धीरे धीरे जैसे आई एम अ वेरी बिग फूडी. तो बेसिकली क्या होता है कि आई विल गो एंड स्टार्ट हैविंग स्ट्रीट फूड. मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन माय बॉडी वेट बिकॉज माय मेटाबॉलिज्म इज फाइन, फिंगर्स क्रॉस्ड. हाँ. बट आई एम वेरी बिग फूडी. तो आई फाउंड दोस 3-4 पीपल जो कि फूडी हैं, तो रैंडमली हम कहीं भी जाएंगे और शुरू हो जाएंगे कि इधर स्ट्रीट फूड किधर है, क्या है, जो भी है. तो घूमना पसंद है तो वैसे दोस्त मिल गए कि कभी वीकेंडिंग, हम वीकेंड पे ट्रिप्स ही मार रहे होते थे, कभी धनौल्टी चले गए, कभी ऋषिकेश चले गए, कभी हरिद्वार चले गए. फॉर दैट मैटर आई आल्सो केम टू रुड़की व्हेन आई मेट यू ऑन अ वीकेंड. तो ऑल दैट इज देयर. ठीक है. तो ये सब चलते रहता है और कहीं ना कहीं हम लाइफ को जी रहे होते हैं क्योंकि हमें पता होता है इसके बाद शायद इस जॉब में हमें टाइम नहीं मिलेगा. Yes, yes, तो yes. हम अपनी पूरी की पूरी जो एक होती है ना घूमने की फिरने की, भारत दर्शन होता है, तो भारत दर्शन में हम इस देश के लगभग 14, हमने इस देश के 14 स्टेट्स देखे. तो 14 स्टेट्स में कल्चर्स क्या हैं, कैसे डिफरेंट हैं, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन अलग है क्या वहाँ पे,
क्या फूड हैबिट्स हैं उनकी, क्या डिफरेंट चीजें हैं जो वो हैं और हमारे पास नहीं है। मतलब अंडमान एंड निकोबार भी हम हो करके आ रहे हैं और फिर हम सिक्किम भी हो करके आ रहे हैं। तो मतलब इस कंट्री का लेंथ एंड ब्रेड्थ हम समझ के आते हैं। तो लबासना इज सो ब्यूटीफुल जर्नी। मतलब इट धीरे आपको पता नहीं चलता, हमें लगता है हम घूम रहे हैं, पर वंस यू आर सिटिंग आइडल ना, उस मे बी एकेडमी से निकलने के 1-2 महीने बाद, व्हेन यू गेट टाइम ऑफ 1 or 2 hours और बैठ के ये चीजें सोचो, तो समझ में आता है कि आप एज अ पर्सन ट्रांसफॉर्म हुए हो धीरे धीरे, और आप बहुत सारी चीजें लर्न कर चुके हो जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हम्म। तो दैट्स हाउ इट हैज बीन। मतलब इट इज अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई विल बी गोइंग बैक टू लवासना नेक्स्ट ईयर फॉर 40 days। तो आई बिलीव आई विल गैदर मच मोर थिंग्स, क्योंकि मैं थोड़ा एनालिसिस हाँ। करके जाऊंगा कि क्या बचा रह गया है। बढ़िया। अर्पित, जैसे हम लोग जब कॉलेज में आए, है ना, तो कॉलेज में हम जब कॉलेज में आके देखते हैं कि यार हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि IITians वुड लुक लाइक दिस, IITians विल बिहेव लाइक दिस, एंड देन वी वर लाइक इन ऑ कि भाई ये जनता कहाँ से आ गई अपनी डिस्ट्रिक्ट के छठे छठे नमूने कहाँ से आ गए, because it's a reflection of society we live in. Like राइट they राइट। are definitely would have been more brainy, maths would have been good, physics would have been good, or chemistry would have been good. That's why they are there. But still, like when you see कि भाई ये हरकतें कैसी कर रहा है यार, ये बंदा कैसा है, तो we are in awe कि इसको भेजा किसने भाई यहाँ. So did you find that kind of reflection in the batch there also? कि यार ये तो बिल्कुल सोसाइटी का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है भले ही they have become decorated इज officers. देयर, दैट इज देयर। और आई पर्सनली बिलीव कि सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हर जगह पे रहेगा, वेदर इट बी पॉलिटिक्स, वेदर इट बी ब्यूरोक्रेसी, वेदर इट बी कॉलेज, हर जगह रहेगा। और सर्विस में है, मतलब वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि हर तरह के लोग मिलते हैं जिस सोसाइटी में है, और यू लर्न फ्रॉम एवरी पर्सन। वहां पे ये रहता है कि यू विल फाइंड एवरी पीपल, मतलब कई लोग को आपको देख के लगेगा कि ओ माय गॉड ये आईएएस ऑफिसर कैसे बना, लेकिन जेन्युइनली वो पर्सन बना है बिकॉज दैट पर्सन हैज समथिंग। ये हम Yes. कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, हम थोड़ा जज कर लेते हैं कि ये ऐसे कर रहा है Hmm. वैसे कर रहा है टाइप। बट जेन्युइनली टेलिंग, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी के रिफ्लेक्शन है। और मुझे लगता है कि एक होता है ना कि मजे करने वाले लोग, बहुत चिल टाइप के लोग, वैसे लोग भी बहुत ज्यादा आते हैं, और हमें लगता है कि ये इंसान आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। लेकिन मतलब ट्रूली स्पीकिंग हमें शायद ऐसा ही होना चाहिए एज एन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि हमारी जो सर्विस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। तो अगर हम इस तरह के लोग नहीं हैं, तो हमारे लिए हाँ. सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम चिल हैं तो चीजें बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कामनेस है। तो Yes. Yes. मतलब दैट इज देयर, वो कॉलेज वाली वाइब होती है कि बच्चे अभी भी, हम जैसे मैं अभी भी, पीपल थिंक कि आई एम अ कॉलेज वाला स्टूडेंट, ठीक है, Yes. क्योंकि Yes. मेरे अंदर वो ऑफिसर नहीं दिख रहा है। क्योंकि मतलब काइंड ऑफ मैं जब भी लोगों के बीच में रहूंगा तो आई विल बी वेरी फन, बट व्हेन आई एम हाँ. सिटिंग इन ऑफिस आई विल डू ऑल द टास्क वेरी नाइसली, आई विल Right. बी एन ऑफिसर। वहां पे किसी को नहीं मालूम है कि आई एम लाइक दिस। हाँ. तो ये जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज यू आर लिविंग, बिकॉज यू नो मतलब ऑफिस में यू हैव टू बी लाइक दैट, ताकि आपके जूनियर्स आपके रिस्पेक्ट करें, आपके कलीग्स आपके साथ प्रॉपरली जो है वर्क करने में इंटरेस्टेड हो। Yes. यू हैव टू शो दैट सीरियसनेस कि मतलब मैं फील्ड पे रहता था तो आई वुड Hmm. नॉट इवन क्रैक अ जोक, आई वाज वेरी सीरियस अबाउट द वर्क कि यार ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है। हाँ ये है कि अगर मैं डिनर पे या फिर लंच पे बैठा हूँ लोगों के साथ, देन आई वुड क्रैक जोक्स कि आप फील्ड पे हाँ. ऐसे बोल रहे थे, आपको लगता है ऐसा हो सकता है क्या, मैं मजे में आई यूज्ड टू, हाँ. मतलब ऐसे मजे ले रहा होता था लोगों के। बट ऑन फील्ड आई वुड नॉट जोक, मतलब इवन इफ समवन इज ट्राइंग टू जोक ना, तो आई विल गिव हाँ. सच लुक्स कि उस बंदे को लगेगा कि अरे यार साहब बहुत ही सीरियस आदमी है। तो वो चीजें करना, वो चीजें मैनेज करना वो बहुत ही जरूरी है। और मुझे लगता है कि वो हम सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होते हैं, बट जब सर्विस में जब टेबल पे बैठ रहे होते हैं, तो मुझे हाँ. लगता है कि हम इक्वली बैलेंस्ड होते हैं एज अ पर्सन। तो वो Yes. डिफरेंस है बस कहीं ना कहीं, कि हम जब दिखते हैं तो सब एक जैसे Hmm. दिखते हैं, बट है हाँ. सोसाइटी के रिफ्लेक्शन ही। ग्रेट. थोड़ा ना भारत दर्शन का थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लोर बताओ कि कहाँ कहाँ गए, बिकॉज लोगों को पता रहता है कि भारत दर्शन कराते तो हैं, और शायद हर बैच का डिफरेंट तरीके से वो सेटअप रहता होगा कि यार ये वाले ग्रुप वहां जाएगा. तुम्हारा क्या सेटअप था कि मतलब यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे यहाँ जाओगे? हमने तो चूज किया था बेसिकली, इट वाज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो हाँ. मेरा जो ग्रुप था लकीली दैट वाज द बेस्ट ग्रुप, दैट फिल्ड इन 15 सेकंड्स। हम्म. तो मैं उन ऐसे लकी 18 लोगों में था जो उस जगह पे जा रहे थे, और मेरे 6 के 6 दोस्त उसी पे जा रहे थे। तो हमारा पूरा ग्रुप भी जा रहा था। और भारत दर्शन मतलब हमने स्टार्ट किया था जम्मू से। तो मैंने जम्मू के टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया। जम्मू का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो है डोडा। डोडा सेक्टर, हाँ. आर्मी अटैचमेंट थी मेरी वहां पे, तो डोडा सेक्टर पे जो आर्मी की चेक पोस्ट है इंडिया की,
दैट इज द ओनली चेक पोस्ट इन जम्मू सेक्टर ऑफ इंडिया जहाँ पे इंडियन पोस्ट ज्यादा हाइट पे, पाकिस्तानी पोस्ट नीचे हाइट पे। बाकी नौशेरा और जितनी भी राजौरी, ये सब जितने भी चेक पोस्ट हैं जो हम न्यूज में सुनते रहते हैं, नौशेरा, राजौरी एक्सेट्रा, पूंछ फॉर दैट मैटर, ये सारे पे ना हम लोअर पॉइंट पे, पाकिस्तान इज एट हायर पोस्ट। तो हम डोडा पे थे, और डोडा इज एट आई थिंक 11,000 फीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10,500 से 11,000 फीट ऊपर है। एक्सट्रीम ठंड थी, -10। एक तो हम ठंड में गए थे और वो भी उतनी ऊपर, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब -10 -15 डिग्री सेल्सियस वॉज अ नॉर्म। तो उसमें हमने फायरिंग भी सीखी है उस ठंड में। फिर मैंने अपना न्यू ईयर वहां पे सेलिब्रेट किया है, मतलब ऑन बॉर्डर, जहाँ पे ऐसा था कि हम अगर न्यू ईयर विश करना चाहें तो हमारे पास सिर्फ एक एवेन्यू है कि हम अपने 2-4 सोल्जर्स को विश करें और बॉर्डर पार पाकिस्तान को न्यू ईयर विश करें। बिकॉज वी डिड नॉट हैव दैट फैसिलिटी कि हम किसी और को न्यू ईयर विश कर सके। तो फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड, एंड देन वी केम टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में वी सॉ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कि कैसे वर्क करता है। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिस कंट्री। ऑब्वियसली इंदौर इज द बेस्ट, बट हमारी हम्म, इंदौर में अटैचमेंट नहीं थी, हमारी चंडीगढ़ में थी। तो चंडीगढ़ में वी सॉ दैट, देन वी मूव टू जैसलमेर टू अंडरस्टैंड द कल्चर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे कैसे वर्क कर रहा है टूरिज्म के एस्पेक्ट से। देन ऐसे ऐसे करके वी मूव टू मुंबई, we moved to Hyderabad, then we went to इधर साउथ में we went to Hyderabad, Mumbai, we went to Mysore, we went to Bengaluru। बेंगलुरु में we celebrated 26 जनवरी, तो we participated in the 26 जनवरी इवेंट। तो वहाँ पे कर्नाटका का ऑफिशियल स्टेट इवेंट में भी पार्टिसिपेटेड। वी अंडरस्टूड कि कैसा होता है स्टेट इवेंट में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहेंगे और हम राइट, स्टेट इवेंट में पार्टिसिपेट शायद ही कभी करें। अगर हम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में हो और हम ऐसे लाल किले पे बैठे हो तो ही पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज राइट। जनरली लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा हम अंडमान निकोबार गए, पोर्ट ब्लेयर में, फिर हम सिक्किम गए। फिर मतलब वी एक्सप्लोर्ड मल्टीपल लोकेशंस, वी आल्सो एक्सप्लोर्ड अ नेशनल पार्क, हम नागारोल नेशनल पार्क गए थे। फिर मतलब वी एक्सप्लोर्ड ऑल दीज लोकेशंस। तो एक होलिस्टिक हमें व्यू मिला कि कैसे चीजें वर्क करें। हम सिक्किम गए तो सिक्किम में हमें ये पता चला कि वहाँ के लोग कैसे हार्डशिप्स में जी रहे हैं, क्योंकि वी हम्म, एक्चुअली गॉट फूड जैसा कि हम कभी नहीं खाए होंगे शायद लाइफ में, लेकिन हमने खाया और हमने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया कि लोग ऐसे यहाँ पे डेली खा रहे हैं। यहाँ पे ये दे आर डूइंग इट फॉर, मतलब फॉर ऑन अ डेली बेसिस, एंड वो इस चीज में सेटिस्फाइड है। तो वी वर लाइक अच्छा यहाँ की लाइफ ऐसी है। वहां पे हमने नगर पंचायत का सिस्टम देखा, मतलब नगर पंचायत के सिस्टम में वहां पे भी इतनी ज्यादा अच्छी चीजें हो रही हैं जो कि हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिक्किम ऑलरेडी ऑर्गेनिक स्टेट है, लेकिन वहां पे नगर पंचायत के लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट किया जाना कैसे कर रहे हैं, एक बहुत ही मतलब बेहतरीन लर्निंग आई वुड से इट वाज, कि ये सारी चीजें हम देख करके आए। और फाइनली इट कंक्लूडेड इन लखनऊ। तो लखनऊ में भी अंडरस्टूड कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एस्पेक्ट्स होते हैं, किस किस तरह के रूम्स होते हैं, कलेक्ट्रेट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ट्राइबल अटैचमेंट भी रही इस बीच हमारी, जहाँ पे हमने ट्राइब्स का कैसे कल्चर होता है, वो कैसे, इनफैक्ट हमने सीधे जो है पीवीटीजीज देखे, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना, उन मतलब उनका कल्चर समझने की कोशिश की थी जब हम पोर्ट ब्लेयर में थे। तो मतलब वी हैड द होल डाइवर्स एक्सपीरियंस दैट वाज नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस कंट्री। कहीं ना कहीं टाइम वाज शॉर्ट ऑब्वियसली, एंड वी वुडंट हैव बीन एबल टू लर्न ऑल दोस थिंग्स, बट हम देख पाए सारी चीजें। एब्सोल्युटली। एंड कितना लंबा रहा था ये भारत दर्शन का जो ये पूरा? 42 डेज 42 डेज। तो मतलब जब निकले तो पूरा 42 डेज के बाद लवासना लौटे? 42 डेज के बाद लवासना लौटे, और बहुत ही तरह डिफरेंट होकर के लौटे शायद, क्योंकि हमने बहुत कुछ देख लिया इस बीच में। यस, यस, यस। ठीक है। तो आफ्टर फिनिशिंग लबासना एंड भारत दर्शन, अब मतलब बेसिकली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद यू हैव जॉइंड योर कार्डर, दैट इज एमपी, राइट? यस। तो उसमें भी तुम्हारा एमपी दर्शन हुआ, एंड लाइक जो भी हाँ हाँ। इंडक्शन इंडक्शन ट्रेनिंग हुई बेसिक, जो बता, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत ऑन जॉब वर्क भी स्टार्ट हो गया, लाइक हैव यू जॉइंड योर ऑफिस और अभी? Small time. I was there for 1 week only. अभी अच्छा, I'll वन be वीक। starting full time in August. तो फर्स्ट अच्छा। अगस्त से I'll be full time in district only. तो I'll be in some charge also. तो फिर So, like, प्रॉपर्ली काम शुरू हो जाएगा। as a first posting, what is expected of you? Like, what kind of role they will assign you? In general, it would differ in district to district or state to state. But in general, from you, I would want to hear कि पहली posting में क्या चीजें को संभाल रहे होगे, या?
पहली पोस्टिंग में दे वांट अस टू लर्न कि होता क्या क्या है। मतलब छोटे लेवल से लेखपाल या पटवारी के लेवल से लेकर के कलेक्टर के लेवल तक क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब एक छोटा सा इशू जो स्टार्ट होता है लेट्स से ऑन अ विलेज लेवल, वो कैसे कलेक्टर तक पहुंचता है, देन वापस कलेक्टर से उस जगह तक कैसे पहुंचता है, ये पूरा प्रोसेस समझना। व्हाट इज आवक जावक का, हमें अगर कुछ बोलना है तो हम कलेक्टर को लिख करके देते हैं, तो वो कलेक्टर तक पहुंचता कैसे है, फिर कलेक्टर वो इशू उस पर्टिकुलर ऑफिसर को कैसे भेजता है, वो बंदा उससे रिजॉल्व करके फिर वापस कैसे पहुंचाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि ये सारे के सारे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हमें तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं पता होता कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये हर डिपार्टमेंट कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहा है, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये समझना बेसिकली कैसे ग्राउंड लेवल पे। वी आर बेसिकली लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। अगर कलेक्टर को एक मतलब एक वर्ड में डिफाइन करना हो, जो कि ऑल्दो बहुत ही नैरो डेफिनेशन है, बट आई वुड सजेस्ट कि ही इज अ लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, ही और शी इज अ लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। तो लैंड रेवेन्यू को समझने के सबसे पहले लैंड को समझना पड़ेगा। तो वही हम बेसिक चीजें समझ रहे होते हैं कि लैंड क्या है, लैंड की मैपिंग कैसे करी गई है, किसकी है जमीनें, मतलब है किसकी, और कैसे किसकी हो रही हैं। ये छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी चीजों तक फिर बड़े डिपार्टमेंट्स आते हैं कि एक बार ये सॉर्ट हो गया तो कैसे चीजें कैसे प्रोवाइड करानी है, कैसे मैनेज करना है डिस्ट्रिक्ट को, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के वाटर मैनेजमेंट, एवरीथिंग, मतलब कैसे करना है छोटी छोटी चीजें। तो हम इंचार्ज अभी इन आर फर्स्ट पोस्टिंग हमें बस लर्न कराया जाता है, कोई भी चार्ज दे दिया जाता है। मतलब हम अच्छा। इवन हम एक पटवारी लेवल का चार्ज भी ले सकते हैं एक हफ्ते के लिए अगर हम चाहें तो, टू अंडरस्टैंड कि एक हम्म। पटवारी करता कैसे है, मैपिंग कैसे हम्म। खसरा बनाता है एक विलेज का, से लेकर के हम हम्म। मतलब एक एसडीएम तक का चार्ज ले सकते हैं, मतलब इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान जो एक साल अभी डिस्ट्रिक्ट में चलती है हमारी। Got it. So you would have the authority to sign the to give crucial decision, or that would hold to the existing officer, and you will be just like observing people. मतलब वी कैन डू दैट ऑल्सो, हम इंडिपेंडेंट चार्ज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो Hmm. है बनाया जाता है हमें सीएमओ, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर किसी भी नगर पंचायत का, या फिर तहसीलदार बना दिया जाता है कभी कभी। तो हम वहाँ पे Hmm. इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए एकदम मतलब वो है, फ्री है कि हम ले सकते हैं। पर Hmm. मतलब हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम डिसीजन लेने के बजाय सीखने की कोशिश करें, मोर और Hmm. लेस कि क्या होता है रेदर देन हम क्या कर रहे हैं। तो वो थोड़ा Yes. Yes. समझने की कोशिश करें कि कैसे चीजें हो रही हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली वी हैव दैट पावर टू टेक डिसीजंस, बट कलेक्टर सर को इन्फॉर्म करके रखना कि मतलब योर कलेक्टर शुड नो, योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड नो कि क्या होना चाहिए। वो उनको बता दो कि सर ये मैं करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे करना चाह रहा हूँ। ही और शी विल सजेस्ट कि Hmm. यार देखो ये चीज है और इस चीज से तुम कर सकते हो ऐसा। तो जस्ट Hmm. यू हैव टू बी इन टच विद देम, ताकि वो न्यूएंसेस बता सके, क्योंकि हमें न्यूएंसेस पता नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमें पता है हम ले लेंगे डिसीजन, बट Hmm. वो न्यूएंसेस उनसे बात करके पता चलते हैं। और फिर जैसे बहुत लोगों को आई थिंक लगता भी है कि जैसे अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए तो सीधे एक डिस्ट्रिक्ट में गए और आप डिस्ट्रिक्ट को पूरा संभाल रहे हो, बट आई थिंक कलेक्टर वुड बी द मेन अथॉरिटी, एंड अंडर कलेक्टर देयर मेनी आईएएस ऑफिसर्स इन जनरल। मतलब जैसे आई थिंक आपके डिस्ट्रिक्ट में हाउ मेनी ऑफिस, आई थिंक यू वुड हैव अ गेट टुगेदर, कितने ऑफिस आईएएस ऑफिसर्स हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट इस कलेक्टर के अंडर काम कर रहे हैं, एंड सीइंग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑल टुगेदर। तो इन जनरल कितना मतलब यस, रहता है? सजेस्ट कि बहुत कम होते हैं। जैसे एक कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर जनरली जो है 2 या 3 आईएएस ऑफिसर्स ही होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से अगर 5-6 तहसीलें हैं, 5-6 सब डिविजन्स हैं, तो हाँ। किसी एक सब डिवीजन में कोई आईएएस ऑफिसर पोस्टेड होगा एज एसडीएम, बाकी सब जो है पीसी मतलब स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। ऑल और राइट, ऑल राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा होता है कि एक सीईओ जिला पंचायत होते हैं, मतलब चीफ हम्म। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला पंचायत, वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जनरली। तो वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट पे म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट सिटी है, मतलब हम्म। सिटी एरिया को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो जो सीईओ स्मार्ट सिटी होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो यही 4-5 लोग जनरली डिस्ट्रिक्ट में आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट हम्म। में तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अदरवाइज क्योंकि सीईओ जिला पंचायत माइट बी अ प्रमोटी ऑफिसर, सारे के सारे हाँ। जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो आईएएस राइट, ऑफिसर नहीं होते हैं, स्टेट सर्विसेज वाले होते हैं। तो मतलब राइट, दैट राइट, इज राइट। आल्सो देयर, बट जनरली यस। मैक्सिमम एक डिस्ट्रिक्ट में 4 और 5 आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ आई हैव दिस वियर्ड क्वेश्चन कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम आईआईटी में एक डिफरेंट ड्रीम लेके आते हैं इन जनरल कि भाई आईआईटी पहुंच गए तो करोड़ों का पैकेज ऐसे करेंगे, बट फिर हमारा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि नहीं यार, मेरे को करोड़ों राइट, का राइट। पैकेज भी चाहिए, मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मैं ये चीजें परस्यू करना चाहता हूँ। सेम थिंग मान लो बहुत सारे लोग यूपीएससी की जर्नी में जाते हैं, सिविल सर्विसेज की जर्नी में जाते हैं,
and they are good also, and they cleared, like they took some attempts, but they have cleared. And once they've cleared civil services, now they a different kind of enlightenment start for some people कि भाई ये सर्विसेज बहुत सही है पर मेरी पर्सनैलिटी पे ये फिट नहीं बैठ रही. तो have you come across this kind of people also in your batch where people started talking different कि यार अब ये चीज तो हो गया, ये पढ़ाओ तो पूरा हो गया, अब मुझे ना let me do a startup or let me go for MBA, let me go for, I think I would go for further studies and then I'll move out. ऐसे kind of, because it will open up a perspective कि भाई सिविल सर्विसेज के बाद भी बहुत सारे लोग डिफरेंट एरियाज में मूव करने की सोचते हैं. तो आई पर्सनली बिलीव कि अभी इनिशियल लेवल पे मेरे बैच में लोग ऐसी बातें नहीं कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं दे वांट टू सी कि अभी हम सर्विस में किस जगह पे किस तरह फिट इन कर सकते हैं. बट हाँ, हायर लेवल्स पे पीपल हैव डन दिस, और आई हैव आल्सो हर्ड फ्रॉम फ्यू सीनियर्स कि उनमें से कई लोग हायर स्टडीज करके किसी फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो करना चाहते हैं. कुछ लोग बहुत अच्छे राइटर बन गए हैं तो वो अपने राइटिंग पैशन के लिए सर्विस छोड़ना चाहते हैं. कुछ लोग हैं ऐसे जिनका स्टार्टअप में मन लग गया है, वो कोई अलग ही एजुकेशन पे स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्विस छोड़ना चाहते हैं. मतलब देयर आर पीपल, और कहीं ना कहीं आई बिलीव कि वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है. यस. क्योंकि वंस यू रियलाइज कि सर्विस में जो आप कर रहे हो मे बी उससे बेहतर आप कुछ करना चाहते हो, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, तो आई बिलीव दे शुड गो फॉर दैट, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है. क्योंकि एक बार एक सिविल सर्वेंट सर्व कर लेता है ना इस सर्विस में, तो आफ्टर दैट वो जब भी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर ये पब्लिक बेनिफिट होता ही है, पब्लिक इंटरेस्ट होता ही है. तो अगर वो एब्सोल्युटली. स्टार्टअप भी करेगा ना, तो उसके अंदर ये चीज एब्सोल्युटली. रहेगी कि हाँ मतलब मुझे स्टार्टअप को कैसे नेशन वाइड बना करके कैसे उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाना है जो मतलब जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो एब्सोल्युटली. हमेशा दिमाग में रहता है. तो वो आई थिंक कि वो ऑफिसर के अंदर से वो जो ऑफिसर वाली चीज होती है ना, पब्लिक इंटरेस्ट देखना, वो चीज नहीं जाती है. बट हाँ, वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट एवेन्यूज कि हम क्या ये कर लें. राइटिंग में वंस दे स्टार्ट राइटिंग तो अपना राइटिंग पैशन परस्यू कर रहे होते हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं राइटिंग से, तो वो भी एक अपना वे है टू रीच आउट टू पीपल. तो ये सारी चीजें एब्सोल्युटली. जनरली लोग कर रहे होते हैं, मतलब एब्सोल्युटली. सोचते हैं इन बारे में. आई थिंक पब्लिक इंटरेस्ट तो उनके कोर नेचर में होता है. दैट इज द ओनली रीजन दे हैव वुड हैव परस्यूड दिस जर्नी कि यार आई हैव दिस फील फॉर द पीपल एंड eventually how can I gather a larger audience, or how can I impact a larger audience, and they would want to explore different avenues also. Great. So we have come to the end of this discussion, but now before closing it, I would love to hear from you any tips or advices to people who have just started their preparation or is in the preparation zone, where you figured out कि boss, from my learning, though you would have we have kind of explored, we have squeezed out the maximum, but still if we have left anything and you would want to highlight on, or you would want to talk through this platform, please go ahead. Personally, I would suggest one thing कि just be consistent यार. Don't procrastinate कि अरे ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे. Try to be as much consistent as you are in this journey, क्योंकि इस जर्नी से जल्दी बाहर निकल लेना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जर्नी जैसे जैसे लंबी होती जाती है ना, चांसेस कम होते जाते हैं. एंड बिलीव मी, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगने लगता है कि हो ही नहीं पाएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस जर्नी को जल्दी से जल्दी खत्म करें, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम कंसिस्टेंट रहें. और ये जर्नी परसिवरेंस की है, मतलब हर रोज फेल हो करके 1 घंटे रो करके वापस बैठना है, तो वो करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर इन दिस जर्नी, मतलब माई ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू यू. बट वही है कि जब तक रो करके वापस बैठना नहीं सीखोगे, ये जर्नी मतलब पार नहीं होती है. तो ये बहुत जरूरी है सीखना. कि जब आप वो इनिशियल अटेम्प्ट्स ले रहे हो ना, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट्स है, आई थिंक यू आर एट द पीक ऑफ एनर्जी, राइट. enthusiasm. You have not got bored of the resources. So while you are there, stretch your limits, max out your energy so that you get the best out of it. If you are preserving it for the further attempts, I think वो एंथू पूरा डाइल्यूट होने लग जाता है, आपको सिलेबस बोरिंग लगने लगता है. तो आई थिंक जब आप फ्रेश हो पहले दूसरे अटेम्प्ट में, तो पूरा पूरा जोर डाल दो, पूरा स्क्वीज आउट कर दो, एंड आई थिंक यू वुड बी एबल टू सेल थ्रू. So thanks a lot, Arpit. It has been wonderful hearing your journey, and दिल खोल के आपने शेयर किया, तो मजा आया सुनकर. Thank you so much for inviting me, sir. And it has been wonderful talking to you. Absolutely, absolutely. Thanks a lot.